خبر دیں گے۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 اسکواڈرن آذربائیجان پہنچ گیا ہے، جہاں وہ بین الاقوامی فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ ISPR کے مطابق یہ دستہ ماہر پائلٹس اور زمینی عملے پر مشتمل ہے۔ خصوصی بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر کسی وقفے کے پرواز مکمل کی، جس دوران پاک فضائیہ کے ایریل ٹینکرز نے فضا میں مہارت کے ساتھ ایندھن بھرنے کا عمل انجام دیا۔ یہ کامیاب فضائی ریفیولنگ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور طویل فضائی مشنز میں شرکت کی بھرپور صلاحیت کا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق انڈس شیلڈ الفا مشق کا مقصد پاکستان اور آذربائیجان کی فضائی افواج کے مابین ہم آہنگی، تعاون اور فضائی دفاعی حکمت عملی کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ مشق میں جدید فضائی جنگی حکمت عملی، مشترکہ آپریشنل پلاننگ اور حقیقی جنگی حالات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ مشق پاک فضائیہ کے علاقائی استحکام کے لیے مستقل عزم، جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ہم آہنگ رکھنے کی صلاحیت اور بین الاقوامی سطح پر آپریشنل تیاری کا مظہر ہے۔ ISPR نے دھرتی ماں کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیا نغمہ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام ریلیز کر دیا۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست سے خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستانیں قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ نغمے میں معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بزدل دشمن کے دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے بہادروں کی قربانیوں پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ نغمے میں خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شہداء کا ہر قطرہ لہو پاکستان کی بقا اور امن کی ضمانت ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور خطے میں جاری پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دوران نواز شریف نے قومی سلامتی کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہی ہیں اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دوحہ میں رات گئے طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ صحت سمت میں پہلا قدم ہے۔ ایکسپر اسحاق ڈار نے لکھا کہ برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکیہ کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی لکھا کہ نگرانی کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ قطر کی میزبانی اور ترکیہ کی ثالثی میں دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 13 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں جنگ بندی معاہدہ طے پایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پولیس کا پہلا اسنائپر اسکواڈ تیار کر لیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسنائپر اسکواڈ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اسنائپر اسکواڈ کو جدید تربیت اور جدید اسلحے سے لیس کیا گیا ہے۔ CPO پشاور کے مطابق اسنائپر اسکواڈ کی پہاڑی وادیوں، سرحدی علاقوں اور جنوبی اضلاع میں استعمال کیا جائے گا۔ ہر اسکواڈ 10 اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ پولیس کے مطابق اسکواڈ کو دور فاصلے پر موجود چھپے دشمن کو نشانہ بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اسکواڈ جنوبی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات ہوگا۔ CPO پشاور کے مطابق سرد موسم میں اسنائپر اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ ایلیٹ فورس کے اسنائپر اسکواڈ کو 3 ماہ کی جدید اسنائپر ٹریننگ دی گئی ہے۔
पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना कर दिया गया है और स्पार्को के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाज़िर दिखाए गए हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा और ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। तर्जुमान स्पार्को का बताना है कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है और HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। इससे कबल EO-1 और KS-1 सैटेलाइट्स कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं और दोनों सैटेलाइट्स इस वक्त खला में मुकम्मल तौर पर फाल हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने स्पार्को और पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह सैटेलाइट पाकिस्तान की इल्मी और तकनीकी तरक्की की समत एक तारीखी संग मील है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का सर फखर से बुलंद किया है। जदीद टेक्नोलॉजी में खुद किफालत ही पायदार तरक्की की जमानत है और सैटेलाइट खुद कफालत की तरफ एक अमली कदम है। ये कामयाबी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ज़राई तरक्की और साइंसी तहकीक के मैदान में भी मुल्क के लिए नई राहें खोलेगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमतें साइंसी तहकीक के फ़रोग़ के लिए यकजा हैं और सिंध हुकूमत इस जिद्दत के सफ़र में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मुराद अली शाह ने स्पार्को की आलमी मयार की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, ये लॉन्च पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी सतह पर नई शनाख्त देगा। अहम खबर देंगे। NTN न्यूज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। ज़राए ने बताया है कि वफाकी और पंजाब काबीना ने शामूलियत के मामले पर पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय खुलकर सामने आ गए हैं। इजलास में ज़्यादातर अरकान ने वफाकी और पंजाब काबीना का हिस्सा बनने की हिमायत की है, ताहम पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमाओं ने इसकी मुखालिफत की है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर यूसुफ रज़ा किलानी ने कहा कि अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो फिर पंजाब काबीना में भी शामिल होना होगा। उन्होंने ये भी राय दी है कि चाहे हम काबीना का हिस्सा बने या नहीं, हमें जमहूरियत की खातिर वफाकी हुकूमत का साथ देना चाहिए। दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद और एतजाज एहसन ने वफाकी और सूबाई काबीना में शामिल होने की सख्त मुखालिफत की है। नदीम अफजल चंद का कहना था कि हमें वफाक और पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, वरना पंजाब में हमारी हालत काफ लीग से भी बदतर हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तनकीद को हमने संजीदगी से लिया है, आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात नोट कर लिए हैं और इन्हें वज़ीर आज़म के सामने रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि बहुत जल्द कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। इजलास में शरीक शहरी रहमान का कहना था कि हमने काबीना में जाने के दरवाजे बंद नहीं किए, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। हम चेहरे नहीं निज़ाम बदलना चाहते हैं। ये मुल्क मेहनत कशों और तालिब इल्मों का है। हुकूमत आपस के लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। अवाम के मसाइल का कोई नहीं सोचता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम सूबाई हुकूमत से पूछते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमारा विजन है कि इस जनरेशन को मौके मिल सकें। हमें आपके दावे और नारे नहीं चाहिए। हम मुतालिबा करते हैं कि मेयारी यकसा तालीम दी जाए। उनका कहना था कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। हम नौजवानों को जाहिल नहीं बनने देंगे। इल्म से रूशनास कराएंगे, मईशत को आज़ाद बनाएंगे, सूद का खात्मा करेंगे। अपडेट करेंगे। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स टैक्सनेट में शामिल करने पर गौर जारी है, जबकि रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने 30 अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज का कहना था कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं।
सिंध हुकूमत ने केटी बंदर और शाह बंदर पर मिनी फिश हार्बर कायम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं, मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्की का विजन है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। खबर देंगे। एफआईए कराची जोन की जानिब से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त उसामा आबिद और महमूद भट्ट के नाम से हुई है। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से 1 लाख अमरीकी डॉलर बरामद किए गए हैं, जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिमान बगैर किसी लाइसेंस के गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स और दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं, जो गैर कानूनी लेन देन से मुतालिक अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं। मुलजिमान बरामद शुदा करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन करने में नाकाम रहे, जिस पर उन्हें हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एफआईए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। डीजी एफआईए की हिदायत के मुताबिक मुल्क भर में गैर कानूनी हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची में सीव्यू से 4 रोज कबल मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त 36 साला सहरिश हसन रजा शाह के नाम से हो गई है। उधर लाइन्स एरिया से घर में मिलने वाली लाश की शनाख्त 72 साला अब्दुल कयूम के नाम से हुई, जबकि क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी गली नंबर 23 के एक घर से गोली लगी लाश मिली। मकतूल की शनाख्त 68 साला अरशद महमूद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक 36 साला सहरिश की लाश 4 रोज कबल सीव्यू से मिली थी। नादरे के रिकॉर्ड में खातून का एड्रेस शेखुपुरा का है। पुलिस ने बताया है कि खातून कराची में कहाँ रहती थी, तफ्तीश जारी है। वाकया मशकूक है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। उधर थाना ब्रिगेड के हुदूद लाइन्स एरिया में घर से 3 रोज पुरानी लाश मिली है। मुतवफ़ी की शनाख्त 72 साल अब्दुल कयूम के नाम से हुई। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुतवफ़ी काफ़ी अरसे से घर में अकेला रहता था। मजीद कार्रवाई के लिए मुतवफ़ी की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी से 68 साला अरशद महमूद की लाश मिली।